Hello students of class 4th, I am going to teach you computer chapter 5th Introduction to MS PowerPoint 2016। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं कंप्यूटर की। Introduction to MS PowerPoint 2016। Hello children, most of you are already familiar with Word 2016, which is a part of Microsoft Office Suite 2016. In this chapter, we will learn about another MS Office program, PowerPoint 2016, which is used to create presentation. But before creating a presentation, we must know what a presentation is. हेलो बच्चों, आप में से अधिकांश वर्ड 2016 से पहले से ही परिचित हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट 2016 का एक हिस्सा है। इस अध्याय में हम एक और MS ऑफिस प्रोग्राम पावरपॉइंट 2016 के बारे में जानेंगे, जिसका उपयोग प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन बनाने से पहले प्रेजेंटेशन हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या है। A presentation refers to the representation of any concept through pictures, graphics, text, and other media tools. Example, an advertisement is a presentation of the product which makes it attractive for the buyers. Presentation मतलब प्रस्तुति क्यों। एक प्रस्तुति चित्रों के माध्यम से किसी भी अवधारणा का प्रतिनिधित्व करती है। रेखांकन, पाठ और अन्य मीडिया उपकरण। उदाहरण, एक विज्ञापन उत्पाद की एक प्रस्तुति है जो इसे खरीदारों के लिए आकर्षक बनाता है। PowerPoint 2016 is an application software that helps us to make presentations, including text, graphics, pictures, and other multimedia. The default file extension of PowerPoint 2016 is PPTX. PowerPoint 2016 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रस्तुतिकरण करने में मदद करता है। पाठ, ग्राफिक्स, चित्र और अन्य मल्टीमीडिया सहित डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ PowerPoint 2016 का PPTX है। Each page in a presentation is known as a slide. When all the slides are combined together and played in a sequence, it is called a slideshow. प्रस्तुति में प्रत्येक पाठ पृष्ठ को स्लाइड के रूप में जाना जाता है। जब सभी स्लाइड्स को मिला दिया जाए एक साथ और एक क्रम में बताया जाए, इस स्लाइड को शो स्लाइड कहा जाता है। द PowerPoint स्टार्ट स्क्रीन appears. Click blank presentation from the right pane of the start screen. The PowerPoint application window appears containing a single slide. PowerPoint प्रारंभ स्क्रीन प्रकट होती है। प्रारंभ स्क्रीन के दाएं फलक से रिक्त प्रस्तुति पर क्लिक करें। PowerPoint अनुप्रयोग विंडो एक स्लाइड के साथ प्रकट होती है। Let us now get familiar with the various parts of a PowerPoint file. आइए अब हम PowerPoint फाइल के विभिन्न भागों से परिचित हों। टाइटल बार। The title bar displays the name of the application program, PowerPoint, and the title of current presentation. It also contains the quick access toolbar on the left side of the title bar and the control buttons on the right side. The quick access toolbar contains the most frequently used commands like save, undo, and redo by default. टाइटल बार एप्लीकेशन प्रोग्राम का नाम यानी PowerPoint और वर्तमान प्रस्तुति का शीर्षक प्रदर्शित करता है। इसमें टाइटल बार के बाईं ओर क्विक एक्सेस टूलबार और दाईं ओर कंट्रोल बटन भी होते हैं। क्विक एक्सेस टूलबार में डिफ़ॉल्ट रूप से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड जैसे सेव, पूर्ववत और फिर से करें शामिल। क्विक एक्सेस टूलबार। रिबन। द रिबन इज लोकेटेड बिलो द टाइटल बार. इट कंटेन्स सेवरल टैब्स लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांसलेशन, एनिमेशन, etc. Each tab contains various tools to create, edit, and format presentation in PowerPoint. Quick Access Toolbar. त्वरित कार्रवाई। रिबन। द रिबन टाइटल बार के नीचे स्थित होता है। इसमें फाइल, होम, इनवर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन आदि जैसे कई टैब होते हैं। प्रत्येक टैब में PowerPoint में प्रस्तुतियाँ बनाने, संपादित करने और प्रारूपित करने के लिए विभिन्न उपकरण होते हैं।
File tab. The File tab is present on the top left side of the ribbons, just below the Quick Access toolbar. It contains options to perform file-related operations such as new, open, save as, print and close. When we click the File tab, the Microsoft Office Backstage view appears. We can choose the desired option from here. फाइल टैब. फाइल टैब त्वरित पहुंचकर टूलबार के ठीक नीचे रिबन के ऊपर बाईं ओर मौजूद है. इसमें फाइल से संबंधित संचालन जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट और क्लोन करने के विकल्प होते हैं. जब हम फाइल को डिक करते हैं, टैब पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बैकस्टेज दृश्य प्रकट होता है. हम वांछित चुन सकते हैं यहाँ से विकल्प. Slide area. The slide area is the document area located in the middle of the PowerPoint window. This is the area where we work the most. It displays the active slide, which usually contains dotted text boxes known as the placeholders. These placeholders can hold content such as text, tables, chart, smart art, graphics, movies, sound and pictures. स्लाइड क्षेत्र. पावर पॉइंट विंडो के बीच में स्थित दस्तावेज क्षेत्र स्लाइड क्षेत्र है. वह क्षेत्र है जहां हम सबसे अधिक काम करते हैं. यह सक्रिय स्लाइड को प्रदर्शित करता है, जिसमें आमतौर पर बिंदीदार परीक्षण बोर्ड होते हैं, जिन्हें प्लेस लीड्स के रूप में जाना जाता है. ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट, टेबल, चार्ट, स्मार्ट आर्ट जैसी सामग्री रख सकते हैं. Slides pane. The slides pane is a strip present on the left side of the PowerPoint window. It shows the thumbnails of all the slides present in the current presentation. We can add, delete, duplicate and reset a slide from here. Slides pane. Slides फलक वर्तमान प्रस्तुति में मौजूद बाईं ओर मौजूद एक पट्टी है. हम हटा सकते हैं. ये थंबनेल्स दर्शाता है ऑल द स्लाइड प्रेजेंट इन द प्रेजेंटेशन. हम इसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट बना सकते हैं और रीसेट व स्लाइड फ्रॉम यहाँ से स्लाइड भी कर सकते हैं. स्टेटस बार. इट इज़ ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पावरपॉइंट विंडो दैट प्रोवाइड्स information about the open presentation such as its slide number, applied theme, etc. It also includes the view buttons and zoom controls. स्टेटस बार. यह पावर पॉइंट विंडो के नीचे मौजूद एक क्षैतिज पट्टी है जो गति की रोकथाम के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जैसे कि इसका साइड नंबर, लागू, थीम इत्यादि. यह व्यू बस और जूम नियंत्रण को भी मिलाता है. स्लाइड लेआउट्स. स्लाइड लेआउट्स contains formatting, positioning and placeholders for all the content that appears on a slide. Microsoft Power provides a list of different layouts from which we can choose. स्लाइड लेआउट्स. एक स्लाइड पर दिखाई देने वाली सभी सामग्री के लिए स्थिति और प्लेस होल्डर के लिए दूषित स्वरूपण स्थिति. माइक्रोसॉफ्ट पावर विभिन्न लेआउट की एक सूची तैयार करता है. ये स्लाइड लेआउट. टाइटल स्लाइड. दिस लेआउट कैन बी यूज टू गिव ए टाइटल एंड ए सुटेबल टू द प्रेजेंटेशन. टाइटल स्लाइड. यह लेकिन प्रस्तुति के लिए एक शीर्षक और एक उपशीर्षक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. टाइटल एंड कंटेंट. दिस लेआउट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. टाइटल वेयर वी कैन ऐड ए टाइटल फॉर द स्लाइड एंड कंटेंट where we can add text, image or graphic like charts, pictures, etc. टाइटल एंड कंटेंट. शीर्षक और सामग्री. इस प्रिंट को दो भागों में बांटा गया है. शीर्षक जहां हम स्लाइड के लिए शीर्षक जोड़ सकते हैं और सामग्री जहां हम टेक्स्ट, चित्र या ग्राफिक्स जैसे चार्ट, चित्र आदि जोड़ सकते हैं. सेक्शन हेडर. दिस लेआउट इज यूज्ड टू separate different section of the same presentation and is an alternate to the title slide layout. सेक्शन हेडर. अनुभाग शीर्षलेख. इस लेआउट का उपयोग एक ही प्रस्तुति के विभिन्न अनुभागों को अलग करने के लिए किया जाता है और यह शीर्षक स्लाइड लेआउट का एक विकल्प है. टू कंटेंट.
This layout is used to add text content along with the graphic content. सामग्री के लिए इस लेआउट का उपयोग ग्राफिक सामग्री के साथ टेक्स्ट सामग्री जोड़ने के लिए किया जाता है। Comparison. This slide layout is similar to the two content layout but also includes a heading text box over each type of content. Comparison. तुलना करें, यह स्लाइड लेआउट की सामग्री लेआउट के समान है, लेकिन इसमें प्रत्येक प्रकार की सामग्री पर एक शीर्षक परीक्षण बॉक्स शामिल है। Title only. This layout is used to place only a title on the slide. शीर्षक. इस लेआउट का उपयोग स्लाइड पर केवल शीर्षक रखने के लिए किया जाता है। Blank. This layout is used to insert graphic content without any information. रिक्त. Blank. इस लेआउट का उपयोग बिना किसी जानकारी के ग्राफिक सामग्री को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। Content with caption. This layout is used to insert content on the right side of the slide along with a title and some text to describe the content on the left side. कैप्शन के साथ सामग्री. इस लेआउट का उपयोग बाईं ओर सामग्री का वर्णन करने के लिए शीर्षक और कुछ पाठ के साथ स्लाइड की दाहिनी बिक्री पर सामग्री डालने के लिए किया जाता है। पिक्चर विथ कैप्शन. This layout is used to insert an image on the upper part of the slide along with the caption or some information below the image. पिक्चर विथ कैप्शन. कैप्शन के साथ चित्र. इस लेआउट का उपयोग स्लाइड के ऊपरी भाग पर एक कैप्शन या छवि के नीचे कुछ जानकारी के साथ एक छवि डालने के लिए किया जाता है। एडिटिंग इमेज टू ए प्रेजेंटेशन. इमेज इन ए प्रेजेंटेशन एनहेंस its look and make it look more attractive. PowerPoint allows us to add image stored in our computer as well as online pictures. प्रेजेंटेशन में इमेज को जोड़ना. एक प्रस्तुति में छवियां इसके रूप को बढ़ाती हैं और इसे और अधिक आकर्षक बनाती हैं. PowerPoint हमें अपने कंप्यूटर में संग्रहित छवियों के साथ साथ ऑनलाइन चित्रों को जोड़ने की अनुमति देता है. नेविगेशन बिटवीन द स्लाइड्स. When we add multiply slides in our presentation, we need to move from one slide to another. There are several ways to navigating between the slides. Click on the thumbnail of the desired slide in the slides pane. Click on previous slide button or next slide button below the vertical scroll bar in the right side of the window. Drag the vertical scroll bar to move to the desired slide. नेविगेशन बिटवीन द स्लाइड्स. स्लाइड्स के बीच नेविगेशन. जब हम अपनी प्रस्तुति में कई स्लाइड जोड़ते हैं तो हमें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने की आवश्यकता होती है. स्लाइड्स के बीच नेविगेट करने की कई तरीके हैं. स्लाइड पेटी में वांछित स्लाइड के थंबनेल पर क्लिक करें. विंडो के राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार के नीचे प्रेस साइड बटन या नेक्स्ट सी बटन पर क्लिक करें. वांछित स्लाइड पर जाने के लिए लंबवत स्क्रॉल बार को खींचें. रनिंग ए स्लाइड शो. ए स्लाइड शो इज ए डिस्प्ले ऑफ द स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन इन ए सीक्वेंस टू द ऑडियंस. इट ऑफन रेफर्स टू ए माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. रनिंग ए स्लाइड शो. स्लाइड शो चलाना. स्लाइड शो दर्शकों के लिए एक क्रम में एक प्रस्तुति में स्लाइड का एक प्रदर्शन है. यह अक्सर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रस्तुति को संदर्भित करता है. क्लोजिंग एंड एक्सिटिंग ए प्रेजेंटेशन. टू क्लोज ए प्रेजेंटेशन क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट द क्लोज ऑप्शन. इट चेंज मेड इन प्रेजेंटेशन आर नॉट सेव्ड. देन ए प्रॉम्प्ट बॉक्स इज displayed which asks us to save them. Click Save to save the changes. Don't save to discard the changes and cancel to return back to the PowerPoint window. To access PowerPoint application, click the Close button on the title bar. The PowerPoint window will be closed. क्लोजिंग एंड एक्सिटिंग ए प्रेजेंटेशन. एक प्रस्तुति को बंद करना और बाहर निकालना. किसी प्रस्तुति के बंद करने के लिए फाइल टैब पर क्लिक करें और बंद करें विकल्प चुनें. प्रस्तुति में दिए गए परिवर्तन सहेजे नहीं जाते हैं. एक प्रूफ
बॉक्स प्रदर्शित होता है जो हमें उन्हें सहेजने के लिए कहता है। परिवर्तनों को सहेजने के लिए सहेजे पर क्लिक करें। परिवर्तनों को त्यागने के लिए सहेजे न करें और वापस जाने के लिए रद्द करें पर क्लिक करें। पावर पॉइंट पर वापस खिड़की पावर पॉइंट एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए बंद करें बटन पर क्लिक शीर्षक पट्टी पर करें और पावर पॉइंट विंडो बंद हो जाएगी।